Okay, hello everyone. Greetings from Vidyalankar. My name is Abhijit and I am the program manager at Vidyalankar, especially for GATE division. So today we will guide you, of course, on GATE exam, how to prepare GATE exam, and plus how this pandemic situation has, affected preparation in a way to certain students, and how with the limited resources, whatever limited resources you guys have, and how you guys can excel in the exam, and how you can start your preparation right away. Okay, now before introducing our speaker for the day, I think like most of you have already seen his profile. So he has cleared a lot of competitive exam. He has actually cracked a lot of competitive exam. Before that, I would like to give you a brief introduction of Vidyalankar because some of the students have today joined from rest of Mumbai and Pune, because Mumbai and Pune mostly they know Vidyalankar. So for the student from other part of India, so we would like to give you a brief introduction about Vidyalankar. Can we go to the next slide? Okay, so Vidyalankar, you all know, I think Mumbai student, most of them, they already know we were established in 1960 by Professor C.S. Deshpande and Dr. Sanjeevani Deshpande, who are the founder of Vidyalankar. And Vidyalankar was actually started with a classroom and with only 2 students, with the motto that knowledge is the only ornament. So today, if you see Vidyalankar group today, can you go to the next slide? If you see Vidyalankar group today, so we are these many groups today. So we have Vidyalankar classes and publication, where we train students on, for different competitive exams as well as engineering subjects. Then we have VII, which is Vidyalankar Institute of International Education, where we have tied up with institutes in various countries across the globe. Then we have a polytechnic college. We have a engineering college in Wadala. I think Mumbai students, all of you know, which is VIT, Vidyalankar Institute of Technology. Then we have VSIT, which is Vidyalankar School of Information Technology. Congo is our digital vertical. Then Admit Abroad, where we train students for GRE, TOEFL, and IELTS. Skillville is one of our vertical, where we train students on special skill development courses. Okay. Then VSB is Vidyalankar School of Business, where we train students for MBA. Now, today, if you see Vidyalankar, we have. Can I go to the next slide? So today, Vidyalankar service almost more than 3,000 plus students every year. We have 1,000 plus employees, and this year we have completed 59 years. Next slide, please. Okay, so here is the expert today, Mr. Ketan Patil. He was one of our student, Vidyalankar student. If you see his profile, he has, he has cleared and cracked a lot of competitive exam. He was one amongst us because he has done his bachelor in engineering in 2015 from Bharati Vidyapith Kharghar. Okay, so he बहुत सारे students आज जितने यहाँ पे हैं, आप लोगों के वो सीनियर है, 5 to 6 years सीनियर है. So he has been there, done that. जहाँ आप लोग अभी हो, he has been there, for last 5 to 6 years back. Now he was ranked 24 under Mumbai University, Indian Engineering Services, AIR 51. He has secured AIR 2 in ECIL. GATE 2017, 99.33 percentile. GATE 2018, 99.26 percentile. He has cracked, PSUs like Indian Oil, IOCL, which are considered to be Maharatna PSUs. ISRO, सबको पता है, BARC, Bhabha Atomic Research Center. He has cracked all of these exams. SSC Junior Engineering also he has cracked. He has worked as assistant manager, okay, during his initial days after his graduation for a year in LZ, and he has been teaching and mentoring students from past 3 years, and he is
actively associated with Vidyalankar as well. He is one of our faculty. So over to you, Ketan. मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. And of course, students, we have already received a lot of questions. We will, of course, answer those questions as well. But we will take Q&A after the session. Okay. So he has a small presentation to show all of you. So he will do that presentation. Then after that, we will take questions, and you all can, speak to KRP sir one by one. Okay. So over to you, Ketan. Yes. Thank you very much. Okay. So thank you very much, Abhijit. And Vidyalankar for giving me this opportunity to speak in front of almost how many people? There are 200 now. Okay. So yeah, again, as usual, before starting, just want a feedback that I am audible properly. Yes, sir, you are. Yes, and PPT is visible, right? Yes, it is. Perfect. Yeah, video visible. Yes, it's perfect. Go ahead, Ketan. Okay. Yeah, guys. So thank you for this welcome and specifying all those achievements. So guys, in today's webinar, we are going to understand something which is very important, and people generally do not know this kind of things. Okay, and it is something that you can earn from your experience. Okay, and मुझे भी ऐसा ही experience आया है throughout my 3 years journey. So guys, as sir correctly shared everything, that yes, I am a 2015 pass out from Bharati Vidyapeeth College of Engineering, and I worked almost for 1 year in one prestigious company, which is a Korean multinational. So it is into manufacturing of power plant construction, procurement, and engineering. So I was in engineering division. So I have 1 year of that private experience as well. Then after getting rid of private company, I decided to prepare for GATE. Okay, then after getting good rank, after getting percentile and all the PSUs in GATE, I started preparation of engineering services and finally cleared engineering services. Okay, so this was a kind of journey जो मैंने शायद 2 मिनट में explain कर दिया, but it was not a journey that took 2 minutes. It took almost 3 years. So and guys, ऐसा कुछ नहीं होता यार, आप सब लोग जितना भी मतलब देखो यार, सबके लाइफ में ये फेजेस होते हैं ऑफ प्रिपरेशन, बट द थिंग इज यू शुड बी क्लियर कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए गाइज ये प्रेजेंटेशन जो है, इट इज बेसिकली फॉर दैट ओनली. यू शुड बी एबल टू नो कि आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सब एग्जाम्स, वो जितने भी एग्जाम्स है, वो आपको करेक्टली पता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है वो आपको पता है, आपको क्या पर्क्स मिलते हैं, ये सब चीजें पता होनी जरूरी है. दोस्तों ऐसा है कि देखो, जो आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट अस से आई एम कंसीडरिंग यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट. ओके, नाउ फॉर गेट एग्जामिनेशन यू विल फील कि what are the opportunities that I have, what are the opportunities that may be there apart from gate. ये सब चीजें जानना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, and today in this webinar we are going to understand all those things. So yes, I'm starting with the presentation. So guys, मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से स्टडी किया है. तो आई एम नॉट, मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, या फिर मेरी एज 50-55 नहीं है. I'm just a 26 year old, 2015 pass out. So 2015 to 2020, almost 5 years of journey, जिसमें पता चला कि सिचुएशन क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज की. तो ये कुछ डेटा है गाइज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी और विच एवर यूनिवर्सिटी जिसमें आप हो. जनरली ये सब चीजें वैलिड है. ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, तो जनरली अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपका कॉलेज कंसिडरेबली वेल है, देन यू गाइज कैन थिंक ऑफ हैविंग कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है, यू नो, अगर आप इंजीनियर हो और आपको बेस्ट पॉसिबल जॉब चाहिए इन एनी प्राइवेट कंपनी, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वो है आपको आपके कॉलेज थ्रू प्लेसमेंट करानी होगी. ठीक है, वो जमाना गया जिसमें मैं पापा को बता के मेरी सेटिंग लगा दो, इसको बता के मेरा काम करा दो, ये सब अभी नहीं होता. ठीक है, बिकॉज इंजीनियर्स इतने ज्यादा आ गए हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है. अगर आपको फेयर
रिक्रूटमेंट करानी है तो कॉलेज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ये पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ आपको, डू नॉट वरी। जो भी प्रेजेंटेशन होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ अ स्टोरी ओनली, ओके, बोर नहीं होगा, जो भी बाकी लोग करते हैं उनसे कुछ ना कुछ अलग होगा। तो दोस्तों कोर कंपनी एंड अदर कंपनी, तो अदर देखो होता क्या है, अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, लेट इट बी फ्रॉम एनी ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई या फिर सिविल, जो भी है, जो भी ब्रांच है, आपका प्लेसमेंट 2 कंपनीज में हो सकता है गाइस। पहले तो होती है कोर कंपनी, सेकंड होती है आईटी कंपनी। तो कोर कंपनी में अगर आपका प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो आपने 4 साल आपके इंजीनियरिंग में पढ़ा है वही सब चीजें आप आगे भी पढ़ोगे। एंड जो एक बहुत अच्छी बात है, ये इसमें एक चीज होती है दोस्तों, जॉब सेटिस्फैक्शन। आपने देखे होंगे बहुत से इंजीनियर जितने भी कॉलेजेस में जाते हैं या फिर जितने भी मूवीज वगैरह इंजीनियर्स पे शूट हुई है, उस पे ये जॉब सेटिस्फैक्शन वर्ड बहुत ज्यादा आता है। और एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको अगर कोर कंपनी में काम कर रहे हो तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो 4 साल पढ़ा है वो आप वहां यूज करते हो। और मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो कोई भी चीज आप बार बार जब करते हो, ओके, देयर इज अ मैसेज अगेन, आई वांट फीडबैक, एवरीथिंग इज क्लियर राइट? देयर इज नो इशू विथ वॉइस? No, sir. नो इशू राइट? No. नो, ठीक है, चलो, ओके। सो तो द थिंग इज कि गाइस, अगर मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर आप कोर कंपनी में जाते हो तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप काम करने में आपको मजा आए। वेरस अगर आप वो मैकेनिकल आप काम कर रहे हो किसी आईटी कंपनी में, तो वहां आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। लेकिन गाइस ये जो कोर कंपनी है, इसमें एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अभी देखो मैं जनरली ऐसा होता है गाइस, जब हम इस एज में होते हैं 25, 26, 30, जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं होती, दिस इज अ, क्या बोलते हैं, एक बहुत मूवी वाला वर्ड है ये, कंधों पे जिम्मेदारी, बट द थिंग इज इट इज क्वाइट रियल, कि अभी आपको फियर नहीं है, अगर मेरा जॉब चला जाए कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इन योर लाइफ जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मैं इतना सब एग्जांपल देना छोड़ दूं गाइस, प्लीज अभी आप जो करंट सिचुएशन चल रही है इन मुंबई और इन होल वर्ल्ड और इन जहां पे भी लोग जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनकी जॉब सिक्योरिटी में बहुत बड़ा खतरा है। आप देख सकते हो, जो भी आपके सीनियर्स है उनसे पूछ लो, तो आपको पता चला कि जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड गुड थिंग इज कि ये जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा आपको मिलती है इन सम कंपनीज, जिनको आप पब्लिक सेक्टर बोलते हो या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हो। ऐसी कंपनीज का जो रिक्रूटमेंट होता है इट इज ओनली थ्रू गेट, एंड ये एक प्राइम रीजन है गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए। ओके राइट, सो देयर आर टू मेनी मैसेजेस गाइज, प्लीज अगर कुछ इश्यू नहीं है तो प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, फ्लो ब्रेक हो रहा है और कुछ। ओके गाइज, अगर दूसरा कुछ हो सकता है आपके साथ तो वो हो सकता है अदर कंपनीज में एक ही फॉर्म आती है भाई, आईटी। आपने पता नहीं जितने भी इंटरनेट पे जो ऐसे कॉमेडी वाले वीडियो बनते हैं जिसमें इंजीनियर्स की लाइफ बताते हैं, उसमें ज्यादातर आईटी होता है। मास रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ये जो कुछ चीजें होती है वो जनरली होती है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादातर बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सब कुछ आप जीरो से स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो बट इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज जॉब, प्रोवाइडेड यू आर नॉट फ्रॉम आईटी और सीएस। अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो आपके लिए वो आईटी कंपनी क्या है, कोर कंपनी। ठीक है, बट अगर आप बाकी ब्रांचेस से हो, मैकेनिकल, सिविल वगैरह वगैरह से हो, और आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। ठीक है, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यू विल फाइंड कि जैसे ही आप एंटर करते हो इन एनी आईटी कंपनी, आप जीरो से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ नहीं पता है, आपने 4 साल कुछ और ही पढ़ा है। ठीक है, इसका जो पैकेज होता है गाइस वो 1.5, 1.8 टू 3.6 तक वैरी करता है। अगेन इट मे वैरी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका कॉलेज कैसा है, आपकी रिक्रूटमेंट कैसी हो रही है। ठीक है, ओके। अगर मैं कोर कंपनी की बात करूं, वहां पे पैकेज आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंजीनियर्स लेने वाले। बट सब चीजों में गाइज अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, विच इज नथिंग बट जॉब सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या फिर जो भी हम हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम लोग जनरली किस पे फोकस करते हैं। तो हम लोग फोकस करते हैं इन सब चीजों पे, जीआरई, आईएलटीएस, टॉफेल, ये एग्जाम है, इसके बाद कैट भी है एंड देन गेट भी है। तो मैं ये नहीं बोलता कोई एग्जाम बेस्ट है, कोई एग्जाम डाउन है, सभी एग्जाम अच्छे हैं। बट अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं फॉर इंजीनियर्स, तो जीआरई टॉफेल जो है गाइस, इसमें आपको 2 साल की और स्टडी करनी है, एमएस। ओके, एमएस बोलते हैं उस प्रोग्राम को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल गई, देन ऑल्सो यू विल फाइंड कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है। एंड जो करंट सिनारियो चल रहा है गाइस, पैंडेमिक है, ठीक है, पैंडेमिक भी छोड़ दिया, देन ऑल्सो आप अगर न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा गाइस कि सभी नेशन जितने भी है उन सब में नेशनलिज्म चल रहा है। नेशनलिज्म मतलब अपने स्टूडेंट्स, अपने वर्कर्स को ज्यादा आप एनफोर्स करो इन एनी इंडस्ट्री, बाहर वाले जो भी आ रहे हैं उनको छोड़ दो। तो वही अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो जो बाहर जाके पढ़ रहे हो,
यू आर डूइंग सो मच इन्वेस्टमेंट, आप इतने ज्यादा पैसे उस स्टडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 साल वहाँ पढ़ रहे हो, और अगर आपको वहाँ पे जॉब लगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और उस डिग्री की इंडिया में इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, ठीक है। तो जो MS मिलता है गाइस थ्रू GRE, ये बेनिफिशियल यही है कि आप जिस कंट्री से हो, जिस कंट्री में पढ़े हो, या फिर उसी एक सेक्टर में आप काम करो। इंडिया में जनरली ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया में अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास IITs है, ISCs है, वो बहुत अच्छा करियर आपको दे सकती है। सेकंड थिंग इज कैट एग्जामिनेशन जो होती है गाइस, इट इज अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी टफ एज वेल, ठीक है। इसमें भी आपको 2 साल का स्टडी करना है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि IIMs या फिर किसी भी MBA स्कूल की अगर आप फीस देख लो यार तो वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एटलीस्ट अपने इंजीनियरिंग के फीस से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, चेंज बैकग्राउंड। आप मैकेनिकल इंजीनियर थे और आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप किसी 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 और चीजों में अपना फर्दर स्टडी कर रहे हो, तो एक तरह से इट इज लाइक आपने इंजीनियरिंग की, ओके। एंड इसके बाद इंजीनियरिंग का कोई यूज नहीं है। अगर आपको आपने 4 साल जिसमें भी इन्वेस्ट किए हैं उसको उसका फर्दर यूज करना है, तो आई थिंक आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है, यू शुड गो फॉर वन एग्जाम विच इज नोन एज गेट, एंड जो बहुत छोटे से लेटर्स में मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये छोटे से लेटर में क्यों लिखा है, क्योंकि यू विल फाइंड गाइज कि गेट को जनरली हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि इससे सिर्फ हमें टीचर वाली जॉब मिलती है, ठीक है, बट हमें और भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं पता, ओके। और इसीलिए इस सेमिनार में, इस वेबिनार में हम जानने वाले हैं कि गेट की अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये जो चीजें गाइस मैंने अब तक शेयर की है, दिस इज नथिंग बट ना, एक्सक्यूज मी, ये जो चीजें जो भी अभी शेयर की है मैंने, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट गाइस करंट सिनारियो जो चल रहा है, ओके। तो अभी हम जान लेते हैं कि गेट में जितनी अपॉर्चुनिटीज है सब आपके साथ शेयर करते हैं एंड आपको अच्छा लगेगा। तो चलो बेसिक जान लेते हैं यार। सबसे पहले गेट है क्या, तो इट्स अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। नो नीड टू रिमेंबर दिस फुल फॉर्म दोस्तों, क्योंकि आप जब गेट का प्रिपरेशन करोगे आपको इतना सब कुछ याद रखना है कि यार फुल फॉर्म कोई सोचता भी नहीं है, okay. Now the thing is guys, this exam is conducted by few IITs and one ISC, ठीक है। तो ISC and 7 IITs जो है अपनी मेजर IITs, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है एवरी ईयर इन जैन और इन फेब दिस एग्जाम इज कंडक्टेड, ओके। एंड गेट स्कोर जो भी होता है वो आपके पर्टिकुलर ब्रांच वाइज होता है। ये सब चीजें गाइस बहुत बेसिक है, आपको ये सब बेसिक चीजें पता हो मेरे ख्याल से, ओके। एंड सबसे अच्छी बात ये है गाइस, दिस गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 ईयर, दिस गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स। मतलब लेट्स से अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने इस साल लेट्स से गेट दिया, आपका स्कोर ठीक ठाक आ गया और आप सोच रहे हो कि अगले साल वापस दे दूं, अगले साल आपका स्कोर ड्रॉप हो गया, तो आप जो पिछला स्कोर है उसके हिसाब से फिर से जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनको टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है गेट एग्जामिनेशन की, राइट। नाउ इट इज अबाउट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कौन है, ओके। ये सब चीजें जो है गाइज ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर आपको इसका बॉटम लाइन बता दूं तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर आप पास आउट हो, यू आर एलिजिबल। एंड द थिंग इज कि जो लास्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम कॉलेज, एंड वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लास्ट ईयर में है, देन ऑल्सो आप गेट देख सकते हो, एंड पास आउट होने के बाद तो आप दे ही सकते हो। पैटर्न ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पैटर्न गाइज, पैटर्न इज complete, it is a complete online exam guys. You will be having MCQ, numerical questions, ठीक है। मतलब MCQ में आपको 4 ऑप्शंस हो गए, उसमें सिलेक्शन करना है, न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशंस करने हैं। तो इसका ये मतलब है गाइस कि जो भी आप इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल सीख रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब वहां आते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, इट यूजेस अ वर्चुअल कैलकुलेटर। तो जो एक नॉर्मल कैलकुलेटर होता है जो अपने आप शायद इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हो, उसका कोई यूज नहीं, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है, ओके। एंड देयर इज अ पेनल्टी है, अगर आप 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग कर देते हो तो 1/3 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सिमिलरली अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो 1/3 विल बी डिडक्टेड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये सबसे ज्यादा रैंक को डाउन करने में हेल्प करती है। इसीलिए ऐसा होता है गाइस, देयर विल बी 65 क्वेश्चन एंड 65 में से आपको ज्यादा से ज्यादा सही करना है, नेगेटिव बहुत कम करने हैं, देन ओनली यू कैन सक्सीड, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब चीजें बेसिक है गाइस, बेसिक जानना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कंप्रीहेंशन होते हैं, एनालिसिस भी होता है, कॉमन डेटा क्वेश्चन, लिंक क्वेश्चन, ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दे दूं गाइस तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस थिंग, ओके। अभी ये ऑप्शंस या फिर ये क्वेश्चन शायद आपने आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। there are two types of question, as I told you already, 1 marker and 2 marker। तो ये 2 marker question है,
एंड आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, सेम नॉलेज जो है आपको गेट में भी लगाना है, लेकिन अप्रोच यहाँ पे अलग होता है। जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो उसका अप्रोच थोड़ा अलग है, यहाँ पे अप्रोच अलग है। ओके, नाउ व्हाई गेट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं गेट एग्जामिनेशन को। ओके, जस्ट मिनट। Okay, now, so why we are giving so much important to GATE examination? First, it provides ample of opportunities in diverse areas. ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि इट इज ओनली फॉर टीचिंग जॉब। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक जनरलाइज चीज है गाइस, जो मैंने बहुत से लोगों से सुना है, क्योंकि उनको एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं है। ओके, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, एंड ये जो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है ये डाइवर्स एरियाज में, मतलब ये क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन है सब आगे देखेंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट इज हाई सैलरी, पर्क्स एंड सिक्योर जॉब। ठीक है, सिक्योर जॉब जो अपना प्राइम रिक्वायरमेंट है वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको हाई सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलती है। इसका एग्जांपल दे दूं गाइस, लेट्स से एक पीएसयू बता देता हूं आपको, इंडियन ऑयल। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है गाइस, इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी व्हेन यू विल जॉइन इट विल बी अराउंड 80,000 इन हैंड सैलरी विल बी 80,000। देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे एक कोई पर्क बता दूं गाइस, तो दे विल इंडियन ऑयल विल ऑफर यू 1 लाख रुपीज फॉर परचेजिंग लैपटॉप। ठीक है, तो इस लेवल के पर्क्स कहीं और नहीं मिलते हैं, प्राइवेट कंपनी तो भूल ही जाओ। ठीक है, बट पीएसयू गिव्स यू सो मच अपॉर्चुनिटीज, सो मच सैलरी एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ पर्क। मैंने आपको एक ही पर्क बताया यार, जैसे लैपटॉप का 1 लाख रुपीज मिलता है, 6 मंथ में आपको फोन अलाउंस भी मिलता है, जिसमें आप एक नया फोन परचेस कर सकते हो। ऐसे बहुत से गाइस बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट बताने जाऊं तो प्रेजेंटेशन का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट वर्क प्रोफाइल, इसका मतलब क्या है यार, देखो चीज ये है कि आप जिस टाइप के इंजीनियर हो आपको उसी टाइप का जॉब करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इससे मिलता है जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे आप कभी बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी और डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो, आपकी मेंटालिटी कुछ और है और आपको किसी और टाइप का काम दे रहे हैं, इट्स नॉट गुड। बट इन पीएसयूज अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपकी प्लेसमेंट या फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो मैकेनिकल का ही होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज में अगर आपको गेट की बता दूं, इसमें एक रैंक होता है, इस रैंक पे सब डिपेंड करता है। तो ऑल इंडिया रैंक आपका कितना है ये मैटर करता है। और दोस्तों ऐसा है, अगर मैं जनरल कास्ट की बात करूं तो अगर आपका रैंक 1500 के अंदर है, आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1500 के अंदर है, देन यू विल फाइंड कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाए। ठीक है, आपका किसी ना किसी पीएसयू या फिर किसी आईआईटी या फिर किसी एनआईटी या फिर कहीं एमबीए के लिए तो सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे आ रही है, डोंट वरी। नाउ चलो देख लेते हैं, सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी आपको गेट एग्जामिनेशन देगी विच इज नथिंग बट पीएसयू। ओके, तो जो भी आपका अगर अच्छा रैंक आता है गाइस, तो आपके पास जनरली 2 ऑप्शन होते हैं। ओके, जिन लोगों को जॉब चाहिए वो जाते हैं पीएसयूज में, एंड जिनको हायर एजुकेशन करना है दे विल गो टू आईआईटीज या फिर आईएससी। ठीक है, तो अगर मैं पीएसयूज की बात करूं गाइस, तो पीएसयूज में जनरली एवरी ईयर देयर आर 700 to 800 वैकेंसीज। ठीक है, पर ब्रांच, आई एम टॉकिंग अबाउट पर ब्रांच, एंड इट विल अगेन वैरी गाइस, ये वैरी होता है, कभी किसी साल कम होता है, किसी साल ज्यादा होता है। ओके, तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है, तो ये वैरी होते रहता है। ओके, एंड अच्छी बात ये है कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज होने की वजह से अगेन ये कास्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब अगर आप लेट्स से शेड्यूल कास्ट से हो तो आपका जो रैंक है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से एस्पेक्ट कवर करता है, जो वैकेंसीज होती हैं, जो रैंक होता है। तो अच्छी बात ये है गाइस, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लूं तो ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर आपका रैंक आ रहा है, देन यू हैव फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू एनी पीएसयू। ठीक है, एंड देयर आर टू मेनी पीएसयूज गाइस, आगे आएंगी बताता हूं कौन कौन सी पीएसयूज है। ओके, अभी पीएसयू की अगर मैं सैलरी बताऊं तो जैसे मैंने इंडियन ऑयल का तो आपको शेयर ही कर दिया, 80,000 पर मंथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है पर इन हैंड सैलरी, और वो भी मतलब लोकेशन अच्छी अच्छी है। जैसे मेरे कुछ दोस्त है वो तो यहीं मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहीं पे उनका आईओसीएल का मार्केटिंग डिवीजन है, वहीं पे काम करते हैं। ठीक है, तो एंड दे आर अलॉटेड अ फ्लैट इन पवई। ओके, सो पर्क्स बहुत अच्छी होती है, ये मैंने पर्सनली देखा है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद गाइस कोर इंजीनियरिंग जॉब, एज आई टोल्ड यू, जिस टाइप के आप इंजीनियर हो, जिस जो आप स्पेसिफिकेशन है आपका, आपको उसी टाइप का जॉब मिलेगा, इससे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। ठीक है, next is obviously it's a secure job. Security is something very important, and ये बहुत secure job है। You are basically level 10 officer, level 10 officer वाली job होती है ये। तो इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, इसका रिक्रूटमेंट ही बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से होता है, क्योंकि लेवल 10 पे जब आप चले जाते हो तो आपकी जो पोजीशन होती है गाइस, इट इज जनरली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये जो पोजीशन है इटसेल्फ इट इज क्वाइट
सिक्योर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज इज गोइंग, देखो आपको अगर पीएसयू के बारे में इन शॉर्ट कुछ बताऊं गाइस, तो पीएसयू ऐसी कंपनीज है जो इंडिया को ड्राइव करती है, इंडिया को ड्राइव करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें सब पीएसयूज है, ठीक है। पीएसयूज क्या करती है इंडिया को, जैसे एग्जांपल दे दूं एसबीआई, बट एसबीआई इज नॉट अ इंजीनियरिंग पीएसयू, इट्स अ बैंकिंग पीएसयू। तो पीएसयूज आर नथिंग बट ड्राइवर ऑफ इंडिया, एंड ये ऐसी कंपनीज कभी बंद नहीं होगी, समझ रहे हो। सो दिस इज नथिंग बट अ चार्ट ऑफ पीएसयूज जो रिक्रूटमेंट हुई थी गेट 2017 में। तो ये एक बहुत छोटा सा चार्ट है 30 पीएसयूज का, बहुत सारी पीएसयूज जो है वो रिक्रूट करती है, ओके। एक छोटा सा मैंने जो मेजर पीएसयूज है उनके बारे में बता दिया। अभी दोस्तों कुछ देखते हैं, गेट से आपको जो रिक्रूटमेंट होगी वो होगी पीएसयूज में डायरेक्टली, पीएसयूज में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होती है, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है गाइस। बट अच्छी बात ये है कि जो इंटरव्यू होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, मतलब आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपका इंटरव्यू के मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि जनरली जो रेशो होता है वो 90:10 होता है, कहीं कहीं चेंज भी हो जाता है, ठीक है। मतलब 10% आपके इंटरव्यू को प्रेफरेंस देंगे, 10% जितने भी आपके इंटरव्यू मार्क्स मिले उसको वो लोग बताएंगे, वेयर एज 90% जो है वो कहाँ बताएंगे, वो जो आपका जो गेट का स्कोर है उससे कोरिलेटेड, तो ऐसा टोटल बनता है, टोटल फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये पीएसयूज के लिए था। अभी कुछ ऐसी भी पीएसयूज है दोस्तों जो जिनके रिक्रूटमेंट के लिए आपको गेट एग्जाम नहीं देना, उन स्पेसिफिक पीएसयूज का एग्जाम देना पड़ता है। जैसे अगर मैं बता दूं इसरो, बीआरसी, डीआरडीओ, ईसीआईएल, ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या ऐसी कुछ पीएसयू जो खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है, खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। एंड अच्छी बात क्या है कि इनका जो भी एग्जाम का पेपर होता है गाइज, यू विल फाइंड कि ये जो एग्जाम का पेपर है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टू गेट। मतलब जो भी आदमी गेट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सब ऑप्शन भी अवेलेबल है। जितने भी पीएसयू का नोटिफिकेशन आएगा आप उनके फॉर्म्स भरो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि यार जो क्वेश्चन मैं गेट में सॉल्व कर रहा हूँ वही क्वेश्चन सब यहाँ पे भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जैक्टली भी आ जाते हैं बहुत बार, और एग्जैक्टली नहीं आए तो कंसेप्ट रिपीट होता है, कभी कभी डेटा के साथ भी रिपीट हो जाते हैं, इतना ज्यादा रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये पीएसयूज में भी आपकी चांस बन जाती है। तो एक एग्जाम की वजह से आप अभी इन सब पीएसयूज के लिए भी एलिजिबल हो, इन सब पीएसयूज के भी आप पेपर इजीली फेस कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत रेस्पेक्टेड है यार, इसरो, बीआरसी, इनमें काम करना मतलब एक बहुत रेस्पेक्टेड जॉब मिलती है। इनमें जो जॉब मिलती है उसको गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। गैजेटेड ऑफिसर शायद आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, राइट। ये और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है मैं आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ गाइज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम, आरआरबी एग्जाम है। आरआरबी एग्जाम जो होती है गाइज वो एसएससी के लिए होती है। इनिशियली वो एसएससी के लिए हुआ करती थी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अभी रिसेंटली रेलवेज ने क्या किया है, उन्होंने बताया कि हम जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे वो सिर्फ जूनियर इंजीनियर लेवल के लिए करेंगे। तो जूनियर आरआरबी जेई की तरह एग्जाम होगी, एंड ये जो आरआरबी जेई होगा गाइज, इससे फिर आप प्रमोट होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम इसको बीच में क्यों लेके आया, क्योंकि दोस्तों इसका भी सिलेबस जो है इट इज मोर ओवर लाइक गेट। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू विल फाइंड इन एग्जाम्स का भी आपसे जो भी कैलकुलेशन है वो हो जाता है, या फिर जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वो हो जाता है। इनमें कभी कभी मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स के भी, लेकिन वो उससे होता क्या है, आपका गेट एग्जामिनेशन से एक जनरल एप्टीट्यूड बन जाता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका डेवलप होता है। ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू क्रैक एग्जाम्स लाइक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एंड गुड थिंग इज रेलवे इज कंप्लीटली गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आपको वही सब बेनिफिट्स मिलते हैं 100% गवर्नमेंट के, ठीक है। इसमें अगर सैलरी अगर मैं इन हैंड बताऊं गाइस, इन हैंड सैलरी अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 45,000 विल बी योर इन हैंड सैलरी, एंड ऑल द गवर्नमेंट पर्क्स विल बी देयर। एंड एग्जाम कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर समटाइम्स डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम गेट पेपर्स, ठीक है। गेट की अगर आप प्रीवियस सॉल्व कर रहे हो, जनरली जो बच्चा गेट का प्रिपरेशन करता है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें से ही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम इज अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम। दोस्तों ऐसा है कि कुछ अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग एग्जाम है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कुछ वैकेंसीज होती है, जैसे अगर मैं बताऊं आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, लेट्स से इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर सीपीडब्ल्यूडी, तो इनका जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो कौन करेगा, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम करेगा, ठीक है। इसमें भी हर साल बहुत सी वैकेंसीज मिलती है, ठीक है। एंड अगेन इसमें जो आपका रोल होगा वो जूनियर इंजीनियर का होगा। इसमें अगर मैं इन हैंड सैलरी बताऊं गाइस तो इट इज अगेन 40,000, एंड again there will be added benefit of working in and government in any government organization, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन वन मोर थिंग गाइस, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट इसमें जो भी टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक पार्ट है, उसको कवर कर लेते हो। इस एग्जाम में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो होता है जनरल करंट अफेयर्स। जनरल साइंस में एक करंट अफेयर्स करके टॉपिक होता है, करंट अफेयर्स थोड़े से पढ़ने हैं आपको, और ये एग्जाम भी आपसे हो जाएगा। ना कमिंग टू स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज,
अगेन वन मोर अपॉर्चुनिटी इफ यू आर स्टडिंग गेट एग्जामिनेशन। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब क्या? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यार एमपीएससी इज आर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो एमपीएससी में भी इंजीनियर्स की वैकेंसीज आती है दोस्तों। ये जो वैकेंसीज होती है उसमें दो टाइप होते हैं, ग्रुप बी होता है, ग्रुप ए होता है, ठीक है। वैकेंसी जो होती है वो कंबाइन ही होती है, जो भी रैंक होता है रैंक के हिसाब से आपको अलॉट होगा ग्रुप ए सर्विस या फिर ग्रुप बी सर्विस। ओके, एवरी ईयर देयर आर वैकेंसीज, एवरी ईयर देयर आर वैकेंसीज। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इट इज अराउंड 40 to 45,000। ओके, अराउंड 40 to 45,000 एट योर स्टार्ट। आपको जो पोजीशन मिलती है वो होती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, बट इसमें एक रिक्वायरमेंट है, वो है मराठी लैंग्वेज जो है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। ओके, तो ये था अबाउट ऑल द एग्जाम्स है, जिसमें मैंने सब आपको एग्जाम बता दी कौन कौन सी एग्जाम्स है। एंड इन सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्जाम्स आप इनमें आपका अटेम्प्ट जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। आपको ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, जैसे करंट अफेयर्स है, बट बाकी जो भी टेक्निकलिटीज वाली चीजें हैं वो आपसे ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है इन स्टडी या फिर आपको रिसर्च करनी है, तो दोस्तों गेट एग्जामिनेशन आपको ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। You have post graduation program from IITs, NITs and ISC. ISC is considered to be the best institute in India and world में भी उसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी खासी है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली IIT, ISC एंड NIT का, तो दोस्तों ISC की अगर मैं बात करूं, ISC में जनरली रिक्रूटमेंट तब होती है जब आपका गेट का रैंक जो है वो लेस देन 100 होता है, ठीक है। लेस देन 100 के बाद भी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप उन्हें पसंद आए तो ही आपको आईएससी में एडमिशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। आईएससी के स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा है, और अगर दोस्तों आप आईएससी के अंदर चले गए देन लिमिट टू योर फ्यूचर इज स्काई, ठीक है। तो इतना ज्यादा डायनामिक फ्यूचर होता है इसमें कि इसकी कुछ लिमिट ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सीधा लिख दिया स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आईएससी इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अगर मैं आईआईटीज की बात करूं, आईआईटीज वैसे तो बहुत सारी है गाइस, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी इंपॉर्टेंट आईआईटीज जो है जो बहुत ही पुरानी है, प्रेस्टिजियस है, इनमें अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपका रिक्रूटमेंट बोल रहा हूँ, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इट्स अ गुड थिंग। आप वहां पे अपना एमटेक या फिर एमएस ये परस्यू कर सकते हो। 2 डिग्रीज मिलती है जनरली, आप एमएस जा सकते हो या फिर एमटेक कर सकते हो। ओके, देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो भी आईआईटीज होती है उनका एक मिनिमम फेयर पैकेज होता है, उसके ऊपर ही जो भी कंपनीज होती है वो अलाउड होती है। तो अगर आप किसी आईआईटी में एमटेक कर रहे हो, आपका प्लेसमेंट होने वाला है, देन नीड नॉट टू वरी कि मुझे 3 लाख 4 लाख जो अपना पैकेज था उस पर मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। नहीं, उनका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो सेटिस्फाई होने के सिवा आईआईटीज में एंट्री तक नहीं होती प्लेसमेंट वाली, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज पैकेज बताऊं, अगेन फ्रॉम डेटा इट सेज दैट इट इज 7 to 9 lakhs व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड थिंग। ओके दोस्तों सुनो, आपका कोई दोस्त है जिसने मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भी अपना कॉलेज है उससे, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे, कॉलेज से प्लेसमेंट से जॉब लिया, ठीक है, एंड उसका लेट्स से पैकेज बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है, और आपने जॉब नहीं लिया, आपने प्रिपरेशन किया 1 साल गेट का, लेट्स से 1 साल में नहीं हुआ 2 साल में किया आपने, ठीक है। 2 साल के बाद लेट्स से आप किसी पीएसयू में चले गए दोस्तों, पीएसयू में तो आपकी सैलरी हो रही है 10 to 12 lakhs, ओके, और वो अभी भी कहाँ है, लेट्स से 2 साल बाद वो 4 से 8 लाख पहुंच गया, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल में कभी भी कोई बंदा 4 लाख से 8 लाख नहीं पहुंचता। ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा है। ओके, अगर मैं एक फेयर वैल्यू भी बता लूं, लेट्स से 4 से 6 लाख वो पहुंच गया, बट आप 2 साल में सीधा 12 लाख पे आ गए, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू हैव। सिमिलरली अगर आप आईआईटीज की बात करते हो, आईएससी तो छोड़ ही दो यार, उसका तो अलग ही लेवल है, ठीक है। आईआईटीज की बात करते हो तो 7 to 9 lakhs आपका पैकेज है। लेट्स से आपका पैकेज है 8 लाख एंड वो आ गया 4 से 6 lakhs पे इन अ पीरियड ऑफ 2 years, देन ऑल्सो यू आर अहेड ऑफ हिम, ठीक है। तो ये लेवल है अगर आप राइट डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन ले जाते हो। अगर आईआईटीज नहीं होती है तो और एक ऑप्शन अपने पास बचता है, दैट इज नथिंग बट एनआईटीज गाइस। तो एनआईटीज भी बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है दोस्तों। कुछ आईआईटीज तो ऐसी है जिनसे बेटर एनआईटीज है। जैसे आप एनआईटीज का नाम सुनोगे तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत, ये बहुत अच्छी आईआईटीज है। यहाँ पे अगर आप एमटेक करते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो दोस्तों गेट आपको जॉब दे रही है, गेट आपको एजुकेशन भी दे रही है, एजुकेशन के बाद आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये सिर्फ आप एक एग्जाम से निकालते हो, और भी मैंने बहुत से आउटपुट बता दिए आपको, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट, स्टाफ सिलेक्शन, सब कुछ बता दिया। और आगे चलते हैं, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता, एमबीए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज इट गाइस? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग एमबीए, भाई इंजीनियरिंग से पूरा बोर हो चुके हो, मुझे अभी इंजीनियरिंग नहीं करना है, ऐसे अगर लोगों को लगता है, उनके लिए भी गेट एक अपॉर्चुनिटी देती है। व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमबीए करना, ठीक है। तो देयर इज अ कॉलेज इन मुंबई, इट्स ओनली सिंगल कॉलेज इन ऑल ओवर इंडिया,
तो उस कॉलेज का नाम है गाइस नीटी मुंबई, इट्स नथिंग बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये भी गेट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे इनके 2 प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो पीजी डीएम है एंड पीजी डीआईपी है, ये 2 प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इनकी रैंकिंग है। और ये आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक एमबीए डिग्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड दोस्तों इसकी एक अच्छी बात ये है गाइज कि इसका जो प्लेसमेंट रेशियो इट इज ऑलमोस्ट 70%। मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक ब्राइट स्टूडेंट हो, मतलब आप मेहनती स्टूडेंट हो बेसिकली, तो आपके पास इजीली अपॉर्चुनिटी है कि आप उस कॉलेज में अच्छे से एमबीए करो एंड यू विल गेट प्लेस्ड। एंड दोस्तों प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज एक बार देख लो यार, इट इज 15 to 16 लाख, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होती है एंड इट इज मेजरली इनके जो मेजर रिक्रूटमेंट जहाँ पे होती है वो एफएमसीजी कंपनीज है। एफएमसीजी कंपनी जो होती है उसमें ये एमबीए की बहुत ज्यादा डिमांड होती है और वो जनरली अब्रॉड होती है। बहुत से लोग तो यहाँ से अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। शायद ये एमबीए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, बट इट्स अ बहुत डायनामिक कोर्स एंड बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। अगर आपको टेक्निकलिटीज जो अपनी टेक्निकलिटीज है उनको छोड़ के एमबीए में करना है कुछ, या फिर मास्टर अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कुछ सोचना है, then this is the best option to you। and अच्छी बात ये है कि गाइस 70% है इसका प्लेसमेंट रेशियो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट ईयर इनका अगर रिकॉर्ड देखोगे आप तो 97% यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। 97 प्लेसमेंट इज टू मच गाइस। एंड एवरेज पैकेज जा रहा है 15 to 16 लाख। ऑब्वियसली यहाँ पे जो फीस होती है गाइस वो फीस भी ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल वगैरह पकड़ के यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख पर ईयर का फीस है। 2 साल का अगर बोलूँ 10 लाख विल बी इन योर इन्वेस्टमेंट। बट गुड थिंग इज 2 साल बाद अगर आपको एवरेज सैलरी वाला भी जॉब लग रहा है देन ऑल्सो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप रिटर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। और एक चीज मैं बता दूं आपको, इट इज स्टडिंग अब्रॉड, ठीक है। 4 यूनिवर्सिटीज है गाइस, 4 यूनिवर्सिटीज है, जिनमें से 2 यूनिवर्सिटीज सिंगापुर में है एंड 2 यूनिवर्सिटीज जर्मनी में, ठीक है। और इन सभी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बहुत अच्छी है थ्रू आउट दी यूनिवर्सिटीज इन वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये NUS विच इज नथिंग बट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, या फिर NTU, या फिर यूनिवर्सिटी विच इज टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच इज इन आखिन, ठीक है। एज वेल एज देयर इज वन मोर यूनिवर्सिटी विच इज इन मुनिक, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज है गाइस। 2 यूनिवर्सिटीज आपको जर्मनी में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, वेयर 2 यूनिवर्सिटीज जो है आपको कभी भी सिंगापुर में आपको एजुकेशन मिलता है। अगेन दे आर प्रेस्टिजियस, तो यहाँ से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो जो लोगों को ये सोच रहे हो कि यार गेट से आपको कहीं बाहर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, दोस्तों गेट इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल, ओके। तो प्लीज आप ये सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा वन मोर थिंग गाइस, अगर ये यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है तो गेट स्कोर होना बहुत जरूरी है एंड आपको IELTS एग्जाम भी देनी पड़ती है विच इज नथिंग बट बेसिक इंग्लिश लर्निंग एग्जाम, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है कि आपका इंग्लिश पे अच्छा खासा कमांड है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम आपको देनी पड़ेगी आपको अगर स्टडी करना है अब्रॉड थ्रू गेट, ओके। एज अगेन मैंने वही बता रहा हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज है जर्मन में एंड 2 यूनिवर्सिटीज है सिंगापुर में। अगर कंपेरेटिवली हम स्टडी करें दोस्तों तो जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी है वहां पे एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिंगापुर, ओके। नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम गाइस। देखो ऐसा है कि अगर मैं इंजीनियर की टर्मिनोलॉजी में बता दूं तो दोस्तों गेट एग्जाम का सिलेबस अगर इतना है, गेट एग्जाम का सिलेबस अगर इतना है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का थोड़ा ज्यादा है। आई कैन से कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज सुपर सेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है। तो अगर आप गेट में एक्सेल कर जाते हो, जो नॉर्मली होता है जब लोग गेट में एक्सेल कर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अभी इससे एक लेवल ऊपर जाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है तो यू हैव दिस एग्जाम फॉर यू, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीएससी ESE भी बोलते हैं। इसी के साथ और एक एग्जाम नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस होने वाला है विच इज नथिंग बट UPSC IRMS विच इज फॉर इंजीनियर्स ऑफ कोर ब्रांचेस, ठीक है गाइज। अगर मैं इन सब चीजों की बात करूँ, अच्छा यहाँ से जो रिक्रूटमेंट होती है इट्स लेवल 10 गैजेटेड ऑफिसर गाइज, गैजेटेड ऑफिसर विच इज ऑफ रैंक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ऐसे इनके रैंक्स होते हैं, सबकी लेवल सेम है, सबकी सैलरी सेम है, पर्क्स भी सेम होते हैं, ठीक है। सिर्फ अथॉरिटीज अलग अलग है, वर्किंग एरिया जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे सैलरी अगर मैं ऑन एवरेज बता दूं तो 10 to 12 lakhs, बट गाइज हियर यू विल बी एंजॉइंग कंप्लीट बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे जो टॉप मोस्ट रिक्रूटर है गाइज वो है इंडियन रेलवेज। बट रिसेंटली इंडियन रेलवे जो है अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कर रहा है UPSC IRMS। तो यहाँ पे अभी टॉप मोस्ट रिक्रूटर जो बनेंगे वो बनेंगे CPWD, उसके बाद वाटर कमीशन। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी इसी एग्जाम से रिक्रूट करते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अच्छा हो गया है, आपका सिलेबस गेट में अच्छा हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने एक्सेल कर दिया, तो नाउ यू हैव वन मोर एग्जाम फॉर यू विच इज नथिंग बट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज से आप क्या बनोगे, इट इज नथिंग बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हो।
या फिर आप इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करते हो, रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अप्रोच बताया है कि गेट एग्जामिनेशन के साथ और क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। गेट एग्जामिनेशन होने के बाद आपके पास ईएससी है, ईएससी होने के बाद आपके पास सिविल सर्विसेज है। तो दोस्तों एक एग्जाम आपका पूरा अपॉर्चुनिटीज का जो डायरेक्शन है उसको ओपन कर देती है। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई गेट एट दिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी इंजीनियर हो और आपको मैं सच में बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब करनी है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है, जो आपको अच्छी सैलरी, ठीक है अच्छी नहीं ओके सैलरी बता रहा हूँ मैं, ओके, क्योंकि इसका ऐसा है कि देखो मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, एवरेज कम ज्यादा हो सकती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपको एक जॉब चाहिए जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देगा, जॉब सिक्योरिटी देगा, अच्छी खासी सैलरी दे रहा है, इसके अलावा आपको पर्क्स भी मिल रहे हैं, तो करंटली गाइस यू हैव ओनली वन एग्जाम एंड व्हिच इज नथिंग बट गेट। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बहुत से करियर ऑप्शंस भी है। करियर ऑप्शंस कैसे है, कुछ नहीं हुआ तो आप लेट्स से बहुत कुछ अच्छा हो गया तो आप पीएसयू चले जाओगे, अगर नहीं हुआ तो आपके पास आईआईटीज है, नहीं हुआ तो आपके पास एनआईटीज है। आप अगर एमबीए करना चाहते हो तो आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एमबीए भी अवेलेबल है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास और भी बाकी एग्जाम्स है, इसरो, बीआरसी, आरआरबी, एसएससी, जेई, पता नहीं कितने कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको देखो ये सब की अपॉर्चुनिटी सब आपको एक ही एग्जामिनेशन दे सकती है, वो है गेट। एंड दैट्स व्हाई दिस एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स यू बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज if you are comparing this with private company. ठीक है, and last best education as if you are interested in doing further education, post graduation, तो दोस्तों ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो कहाँ, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, आईएससी बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया इन वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आईआईटीज है, एनआईटीज है, देयर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज गाइस। मैंने ये तीनों पॉइंट्स बहुत डिटेल में पहले बता दिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो करंटली इफ यू वांट समथिंग गुड for your engineering career you have to face gate examination. Now very important guys, कितना स्कोर एम करना चाहिए हमने सर, कितने मार्क्स लाने चाहिए? दोस्तों मेरे ख्याल से रैंक 1 शुड बी योर एम। आपको रैंक 1 लाना है, इसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन करना है। ठीक है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं 40 मार्क्स लाऊंगा, 50 मार्क्स लाऊंगा वगैरह वगैरह, इतने कभी नहीं आने वाले। ठीक है, आपका जो एम है वो पीक आउट होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करोगे। तो अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि व्हाट शुड बी आवर एम और सिक्योरिंग, व्हाट शुड बी आवर रैंक, कितना क्या करना चाहिए सर, कितने मार्क्स लाने चाहिए? दोस्तों कभी भी एम करो रैंक 1 के लिए, बाकी आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कहाँ तक जाओगे। ठीक है ना, चलो गेट के मैजिक स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें से अगर आप 35 मार्क्स लेके आते हो तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एमटेक कर सकते हो। ठीक है, गेट का दोस्तों एक क्वालिफाइंग स्कोर होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद जनरली 128 होता है, ये वैरी करता है। ठीक है, अगर 128 प्लस आपको मिल गए तो दोस्तों ऐसा होगा कि आप एलिजिबल हो टू टेक एडमिशन इन एनी प्राइवेट कंपनी। इवन आप किसी पीएसयू के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पीएसयू की कट ऑफ 70-80 होगी, आपको वो बुलाएंगे नहीं। ठीक है, देन अगर आपका 35 से भी कम स्कोर आ रहा है लेकिन वो आप जो क्राइटेरिया है या फिर जो मिनिमम सिक्योर मार्क्स है उसको क्रॉस कर रहे हो, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कॉलेज में आप एमटेक कर सकते हो। अगर आपका जो 35 से 45 में अगर मार्क्स आ गए देन इट इज गुड, यू कैन अगेन गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ गाइज, अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन लिया है, लेट्स से आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया, लेट्स से आपने विद्यालंकार ज्वाइन किया है एंड यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, एवरीथिंग इज गिवन, आपको टेस्ट सीरीज देंगे, सॉल्व कराने बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होती है। ऐसे करने से अगर आपने अच्छी मेहनत की गई तो आई एम श्योर कि आपका जो स्कोर होगा ना वो 65 प्लस होगा, आपका जो स्कोर होगा वो 65 प्लस होगा। और जैसे ही आपका स्कोर जो है वो 65 प्लस होता है, आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ठीक है, एंड मैं यही बता रहा हूँ गाइस, गेट का जो है ना एक तरह से हाइप बना दिया है लोगों ने कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल, इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट एग्जाम। आप जब प्रिपरेशन में जाओगे, आप अच्छा प्रिपरेशन करोगे, देखो ऐसा होता है गाइस 2 लाख लोग एक्चुअली गेट में बैठते हैं, उसमें से 1 लाख या फिर मैं अगर 1 लाख भी बहुत ज्यादा बोल दिया ना, 50,000 लोग ही ऐसे होते हैं जो कभी भी अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप डेटा उठा के देखो गाइस तो जो 2 लाख लोग बैठते हैं ना एग्जाम में, उसमें से 1.5 लाख के तो नेगेटिव मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क्स 0 से भी कम। क्यों? क्योंकि फॉर्म आया भर दिया, प्रिपरेशन कोई नहीं करता। प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए गाइस। लेट्स से आपने क्लासेस ज्वाइन किए, आपने सब कुछ चीजें अच्छे से पढ़ी, टेस्ट सीरीज अच्छे से दी, मैं ये बेट करता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 65 प्लस आ जाएगा एंड आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे छोड़ दिया, कुछ रिवीजन नहीं किया, एक स्ट्रैटेजी फॉलो होना बहुत जरूरी है, इससे आपका आउटकम जो है बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे स्टार्ट करना है गाइज? 5 फेजेस में इसको जनरली मैं डिवाइड करता हूँ, लर्न, अंडरस्टैंड, सॉल्व, टेस्ट एंड रिवाइज। दोस्तों मुझे नहीं पता आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितना अच्छे से पढ़ाते हैं,
वो प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपने चीजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बार आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया, लर्निंग में गए, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग क्या है, देखो सीखना और उसके बाद उसको वापस एक बार रिवाइज करके उसको अंदर एब्जॉर्ब करना, ये होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक बार वो सब चीजें एब्जॉर्ब हो गई, देन यू शुड गो फॉर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर, सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये सब चीजें। उसके बाद आपको खुद को टेस्ट भी करना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही पाथ पे है या नहीं, तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एंड देन अगेन रिवीजन। ये साइकिल दोस्तों, ये आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से कंटिन्यूअस साइकिल है, ये आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका किसी भी पीएसयू के सिलेक्शन में नाम नहीं आ जाता, किसी भी आईआईटी के सिलेक्शन में नाम नहीं आ जाता, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू रखना है। गेट एग्जामिनेशन का यही एक अच्छा पॉइंट है गाइस, कि आपको एक साइकिल फॉलो करना पड़ता है जब तक आपका कुछ हो ना जाए, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू यू बाय विद्यालंकर, राइट, लाइक दे लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इज ऑलरेडी चल रहा है बाय प्रोफेसर्स, ठीक है। प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं, लर्निंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, सॉल्विंग भी हो जाता है लेक्चर्स में, रिवाइज इज समथिंग यू हैव टू डू। और आपका जो रिवीजन है गाइस, यही आपका मार्क्स डिसाइड करता है, क्योंकि आपको, आप समझ सकते हो यार, 4 साल का जो भी सिलेबस है, हालांकि 4 साल में तो सभी सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, पर जो भी 12 to 15 सब्जेक्ट करने हैं, उन सब्जेक्ट को आपको 3 घंटे में विथ परफेक्शन डिलीवर करना है। इन 3 hours यू हैव टू डिलीवर इट विथ परफेक्शन, एंड दिस इज नॉट अ इजी टास्क। ये सिर्फ एक ही वे से हो सकता है, विच इज नथिंग बट रिवीजन। Now, this is again a very important question, when to start? When to start, guys? सिंपल आंसर यार, ज्यादा मैं एक्स एंड वाई में बातें नहीं करता। इट स्टार्ट नाउ, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आपको सब कुछ समझना है, सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। जितना ज्यादा खुद को टाइम दोगे रिवाइज करने का, उतना ज्यादा सक्सेस चांसेस है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि सर लास्ट ईयर में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लास्ट ईयर में आप स्टार्ट करोगे, आपने लेट्स से समझा, रिवाइज किया, इसमें एक अटेम्प्ट चला गया, दूसरा अटेम्प्ट चला गया, तीसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एज कहाँ चला गया, आपका एज चला गया 26, 25, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आपको सिलेक्ट होना है, तो आप जैसे पास आउट होते तो वो सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है। पास आउट हुए, गेट दिया, अच्छा रैंक आया, ज्वाइन कर लिया, कोई डिले नहीं है। प्रिपरेशन टाइम जो आपने वेस्ट किया है ना बीच में, वेस्ट नहीं बोल सकता मैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मैं सोचता हूँ कि कॉलेज के टाइम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी वाला जो पोर्शन है वो भी हैंडल हो जाता है, गेट का पोर्शन भी हैंडल हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों को आप बैलेंस कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कॉलेज में अगेन मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, ठीक है। बट यू कैन इजीली बैलेंस इट। हाउ? जो भी लेक्चर्स होते हैं उनमें जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इंजीनियरिंग से ही आने वाला है, राइट, या फिर जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो गेट में ही आने वाला है, तो आपको ये बैलेंस करना है, ओके। एंड ये आपका एक टाइम टेबल होता है दोस्तों, एक शेड्यूल होता है, वो बनाना पड़ता है, इसी से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, ठीक है। whenever you find yourself कि भाई मेरा टारगेट ये है, I want to target this examination, I want to get selected in PSU, या फिर I want to do MBA, या फिर I want to do MTech, आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है उसी इंस्टेंट से, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू व्हेन टू स्टार्ट। पीपल आस्क मी लॉट ऑफ टाइम कि सर कब करें, यही एक आंसर है जो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल। नाउ एट लास्ट गाइज, एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट द प्रिपरेशन इज हेक्टिक, सब कुछ चीजें इजी नहीं होती, बट अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, देन आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। दोस्तों लोगों ऐसे भी है कि जो लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस का गेट दिया है, वहां पे ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये पॉसिबल है एक शेड्यूलिंग से, जो मैंने बताया, ये लर्न अंडरस्टैंड वाले ये कंसेप्ट जो है, ये फॉलो करने से, खुद रिवाइज करोगे, जितना आप एब्जॉर्ब करोगे उतना ही आप बेस्ट डिलीवर कर पाओगे। और इन सब चीजों में कभी कभी खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, वो बता दूं आपको, दैट ट्रस्ट योर ब्रेन एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन टफ कंडीशंस। दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग पेपर लिखते हैं, और जब पेपर लिखने जाते हैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भूल गया, जो भी डेटा है मुझे याद नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसे टाइम पे अपने ब्रेन पे ट्रस्ट करना सीखो। हम दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरों के आंसर पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अगर आपको सक्सीड होना है इन योर लाइफ, तो ऑलवेज ट्रस्ट योर ब्रेन एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन टफ कंडीशंस, ठीक है। एंड व्हाट इज टफ कंडीशन फॉर यू राइट नाउ? अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 घंटे का जो पेपर होता है, जब आप लिखने जाओगे तो शायद आपको आपका फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट ये आप पहले से अगर सोच रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा, आप एक तरह से आपके ब्रेन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहां पे आपने ये स्टेटमेंट देना चाहिए, यस आई कैन रिमेंबर इट एंड आई विल डू इट, एंड यू विल डेफिनेटली डू, ठीक है। सो आई गेस apart from this the next thing will be continued by Abhijit.
Yeah, we have a lot of questions coming in from students. Okay, so we will open Yes. our chat box also in some time so that सब लोग क्वेश्चन पूछ सके. But कुछ लोगों ने पहले क्वेश्चन कुछ डाला था हमारे पोर्टल पे, so we will try to take those questions and I hope like first of all thank you for guiding our students. बहुत मुझे लगा है उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है आपके प्रेजेंटेशन से. So we'll directly go to the questions. पहला क्वेश्चन विवेक ने पूछा है. सो ही उन्होंने पूछा है, आई एम इन थर्ड ईयर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर ईएससी एंड गेट, प्लीज गाइड. सो आई थिंक दिस हैज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड. ओके, so Yes. we will skip those questions which has already been addressed. Okay, Yes, now sure, sir. yeah, Sure. कल्पेश ने पूछा है, how many score required to get admission in IIT. ये आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो, लाइक आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी Yes, मद्रास, yes, आईआईटी yes. दिल्ली का कट ऑफ क्या है? यस, राइट. तो ऐसा है कि अगर मैं हायरार्की बताऊं तो सबसे पहला तो मैं स्कोर वाइज नहीं बताता, मैं रैंक वाइज बताता हूं सर, क्योंकि वो ज्यादा हाँ. रिलेवेंट होता है. ठीक है, और वो Sure. बच्चों को पता भी चलता है कि रैंक अगर इतना लाना है मतलब मुझे ये करना पड़ेगा. तो दोस्तों ऐसा होता है कि आईएससी जैसे मैंने बता दिया बहुत प्रेस्टिजियस है, वहां अगर जाना है तो लेस देन 100 रैंक होना बहुत जरूरी. ठीक है, उसके बाद अगर आईआईटी की बात करूं जनरली तो गाइज बिलो 700 रैंक यू विल गेट बेस्ट आईआईटी लाइक आईआईटी बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली. ये तीन आईआईटी बहुत ज्यादा फेमस है. इसके ऊपर अगर जितना आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओगे बाकी आईआईटी जो है वो आते जाते हैं. ओके, एंड द गुड थिंग इज कि कुछ आईआईटी है जैसे आईआईटी बीएचयू एंड ऑल, इनसे अच्छा आप एनआईटी को प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, तो समटाइम इट इज कंपैरिजन बिटवीन एनआईटीज एंड आईआईटी. कुछ आईआईटीज कम आते हैं वेराज कुछ आईआईटीज बढ़ जाते हैं, जैसे एनआईटी त्रिची मैंने एग्जांपल दे दिया. ठीक है, तो योर स्कोर और योर आपका जो एम होना चाहिए इट शुड बी 700 रैंक टू गेट इनटू बेस्ट आईआईटी. ओके, एक क्वेश्चन पूछा है गणेश ने, हाउ टू प्रिपेयर गेट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज. सो लाइक as you already said, you should Yes. start preparing You should as soon as start possible. preparing Yeah, as soon as yeah, possible. yeah, Yes, sir. yeah. Okay, So, and according to me, sir, the best thing will be to join some 2 years course. yes, yes. Okay, because it gives you good horizon to absorb all those knowledge and you can revise well. And the only key to success in this examination is revision. So we do have a batch for second year of engineering students as well. So Okay. if you want to know more, you can get back to us. So we have kept our fees at very minimum, this thing, very minimum. So जिन लोगों को पता second year में है उनको अभी से join करना है, अभी से prepare करना है, we have a batch already for second year of engineering students. So they can join. 25th से उनका भी start होगा. Now next question is what is the difference between ME and MTech? ये पूछा है कोई SPB. Right. ME and MTech, it is basically generally अगर मैं बता दूं तो MTech is whenever you go to IITs. ठीक है, IIT से अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो MTech में चला जाता है टेक्नोलॉजी पार्ट में, whereas अगर नॉर्मल कॉलेज है तो वो ME में चला जाता है. जनरली गाइस ME कोर्सेज जो होते हैं, ME कोर्सेज सबको ज्यादा पता होते हैं. ठीक है, एंड ME कोर्सेज से ही आपका जनरल टीचिंग वाला करियर स्टार्ट होता है. ठीक है, राइट. तो अगर टेक्नोलॉजी में आपको एक्सेल करना है तो MTech, अगर एजुकेशन में जाना है तो ME. उन्होंने पूछा है कि कैन आई गेट एमटेक डिग्री विदाउट टेकिंग गेट. नो नो, यू कैन नॉट. You cannot, yes. You cannot. So if I want to apply for a PSU, what is the process? Will I get a call or do I have to give any other entrance exam? Okay. See what happens, guys. If your examination, if your gate examination is on 13 of Feb, okay, so by the time, let's say in 1st December, by the time 25th December to 15th of Jan, ये जो पीरियड है 20 डेज का, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सभी जितनी भी PSUs है उस पर्टिकुलर गेट से रिक्रूट करने वाली है, वो सब अपना नोटिफिकेशन डालती है. ठीक है, उनका जो करियर सेक्शन होता है गाइस, करियर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं फॉर गेट 22 रजिस्ट्रेशन. लेट्स से 22 अगर मैं एग्जांपल लूं तो वहां पे जाके आप रजिस्टर करो. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि PSUs इतनी बड़ी कंपनीज है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे वगैरह नहीं मांगते. तो सब कुछ जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या फिर एक मार्जिनल फीस होंगी जैसे 50 रुपीज, 100 रुपीज. ठीक है, तो इन पीरियड ऑफ 25 दिसंबर टू 15 जैन आपको ये 20 दिनों के जो फेज होता है इसमें PSUs के नोटिफिकेशन आते हैं, आप उसमें एनरोल हो सकते हो. ठीक है, Okay. Can you hear me? Yeah. So Yes. next question. Yeah. Next question is how will COVID lockdown affect Gate 21 student? What should be the plan? Look for a job or do my masters? I think, COVID लॉकडाउन शुड हेल्प स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि आपको
देखो पहले जो आपका जो नॉर्मल डे था, मतलब जब मैं प्रिपेयर करता था, मेरा क्या होता था, मैं दिन भर कॉलेज जाता था, उसके बाद अगर मुझे कुछ प्रिपेयर करना है, मेरे पास कुछ एनर्जी नहीं है, तो क्या प्रिपेयर करूंगा। बट अभी आप पिछले 3 महीनों से घर पे हो, ठीक है, लेक्चर्स अभी मेरे ख्याल से सर आईआईटी ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है कि इसके बाद जो भी उनका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा कंप्लीट ऑनलाइन होगा। ओके, तो कोई कभी क्लासरूम नहीं जाएगा, एंड सेम मुंबई यूनिवर्सिटी और अदर ऑल यूनिवर्सिटीज विल फॉलो। तो इसका यही मतलब है दोस्तों कि आपके पास अगले 6 महीने हैं जिसमें आप फ्री हो, ठीक है। कॉलेज के लेक्चर्स होंगे ठीक है, बट आपका फिजिकल जो टेंशन होता था वो नहीं होगा, तो आप एक्चुअली घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ये मेरे ख्याल से बेनिफिट है, डिसएडवांटेज नहीं है। कोविड लॉकडाउन का स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। एक दीप्ति करके स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि जॉब इन गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर फॉर गर्ल्स आफ्टर इंजीनियरिंग थ्रू गेट और एनी अदर एग्जाम, फीमेल कैंडिडेट के लिए। आई थिंक शी Okay, इज आस्किंग फॉर okay, first thing, right. It's a very good question, sir. हाँ, And गुड the क्वेश्चन। thing is कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो जॉब्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छे या बुरे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो जॉब्स है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए एक तरह से मैं कम पर्क्स वाले बोल सकता हूँ। सर ऐसा है, जनरली किसी भी सेक्टर में, किसी भी पीएसयू में या फिर गवर्नमेंट जॉब में फीमेल्स को बहुत ज्यादा पर्क्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। अभी अगर मैं एक छोटी सी चीज बता दूं दोस्तों, तो अगर मैं लेट्स से मैटरनिटी लीव ले लूं, तो सर दे हैव 6 month मैटरनिटी लीव, ओके। वेयर एज फॉर लेट्स से टेकिंग एग्जांपल मेन, फॉर मेन इट इज ऑफ ओनली 15 days पैटर्निटी लीव अगर होती है तो 15 days, ओके। उसके बाद लेडी ऑफिसर्स आर जनरली रिस्पेक्टेड अ लॉट एज कम्पेयर टू मेल ऑफिसर्स। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपको वहां पे बेनिफिट मिलते हैं इन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर या फिर किसी गवर्नमेंट फॉर्म में। Okay, Shreesh Deshmukh, he is asking like it's halfway through July already. Starting from now onwards, if I want to crack GATE 2021 GATE exam, what should be my strategy? राइट गाइस, तो इट्स जुलाई, या इट्स क्लियर। बट अच्छी बात यह है कि आपके पास जो टाइम है वो फ्री टाइम है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, जो भी ब्रेक्स मिल रहे हैं, देखो कॉलेज तो ठीक है 9 to 5 अगर आपका कॉलेज है, देन ऑल्सो कंप्लीट लेक्चर्स तो नहीं होंगे, कुछ लेक्चर्स है जो मे बी आप कॉम्प्रोमाइज कर सको, ठीक है। तो द गुड थिंग इज कि यू हैव टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर जुलाई नॉर्मल होता, कॉलेजेस जाना है आपको, शायद वो तभी थोड़ा डिफिकल्ट हो पाता, बट सर मेरे ख्याल से अभी भी ऑलमोस्ट 6 months बाकी है। 6 months इज मोर देन इनफ, ओके। अगर आपके पास एक प्रॉपर टीचिंग प्लान है, आपके जो प्रोफेसर आपको लेट्स से विद्यालंकार में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सेप्ट। Okay. Archita wants to know, should I just stick to my regular college going notes for preparation and concept based training, or No, should I go for yes. not at all, ठीक है। कॉलेज, सी एज आई टोल्ड यू गाइस, अप्रोच ही अलग है यार एग्जाम का। इस एग्जाम का अप्रोच अलग है। वहां पे जो आपके यूनिवर्सिटी में आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना गाइस, उसको आप 15 मिनट्स लेते हो, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे और शायद 2 मिनट दे। तो मुझे बताओ, आप सेम टर्मिनोलॉजी सेम वे यूज करोगे तो यहाँ पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको 65 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो अप्रोच बहुत अलग है, कॉलेज के नोट्स अलग है, यहाँ पे आपको अलग करना। Snehal from IN instrumentation branch, she wants to know, I want to know as if I had done my GATE exam in this year, due to some reason I don't want to take masters for now. The question is that, is my GATE mark sheet valid for 2 years, or else I have to take GATE exam again? Yes, it's valid for 3 years. This is the recent update. 3 साल के लिए वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी करना है आप कर सकते हो। 3 साल में आपको जो भी एप्लीकेशन है, लेट्स से अभी जो 21 GATE 21 एग्जाम होगा, इसके बाद भी आप कर सकते हो उसी स्कोर को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं। Harshada Patil wants to know, syllabus of GATE preparation and placement preparation after B are different or same? मतलब अगर जॉब प्लेसमेंट के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, गेट एग्जाम का प्रिपरेशन मैंने कर रखा है, तो हाउ विल इट हेल्प? नाउ दिस हेल्प्स अ लॉट गाइस, ठीक है, बिकॉज जनरली दिस इज अ प्रैक्टिकल। अगर मैं इसका सर एक डेमो देना चाहूँ या फिर एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो मेरे लाइफ से ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जिस प्राइवेट कंपनी में प्लेस हुआ था, वहां पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, तो मैंने रिसेंटली ही गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उन्होंने जो मुझे, जनरली ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी में आप अगर जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो दे आस्क यू व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो आप क्या करो, ऐसे सब्जेक्ट बताओ जो आपने रिसेंटली गेट में पढ़े, और जब आप वो सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ते हो, तो दोज पीपल आप बेसिकली दे विल फिगर आउट कि भाई इसको आ रहा है, ठीक है। एंड गेट में आप जिस डेप्थ में पढ़ते हो, वो डेप्थ शायद उनको भी नहीं पता होती। Yes, right. So guys, we will now open the chat box, okay, for some time. So जिन लोगों को questions है, you can put it in the chat box. We'll try to take few questions because we also have time constraint. उसके बाद भी अगर if your questions are unanswered,
then you can get back to us at 9004384232. ये जो नंबर है, और अगर आपको सर से भी बात करना है, we can connect you to sir as well, Ketan as well. So now first question we have got from Rohit. One of my seniors had 4 backlog, but he is still got admission in top, what is it? रुको, ऊपर चला गया. Just yeah. So top US universities for a master program. So is going abroad a better option for an average student? Right, guys, this is a fame. Okay, एक बात अगर बता दूं तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो अब्रॉड में हैं, और मैं कुछ नहीं देखता उनके, सिर्फ इंस्टा या फिर फेसबुक के फीड देखता हूँ. कोई यहाँ जाके फोटो निकाल रहा है, कोई वहां जाके फोटो निकाल रहा है. दोस्तों ऐसा होता है मेरे ख्याल से. ओके, ऐसा होता है कि हम लोगों को क्या लगता है कि हम अगर वहां जाएंगे, बाहर जाएंगे तो अपनी लाइफ अलग होगी, एक बंगलो मिलेगा, BMW में घूमेंगे. ऐसा नहीं होता. जो यहाँ पे पे पैकेज आपको है, वहीं पे पे पैकेज जो है वो उतना प्रोपोर्शनेट मिलता है आपको. ठीक है, तो जितना जिस लेवल पे आप एज एन इंजीनियर काम कर रहे हो, वहां पे भी उसी लेवल पे काम करो. और अगर आप वो डिग्री लेते हो और इंडिया में आते हो तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. एंड दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं है तो अगर खर्चा आपको लेट्स से 50 लाख आता है, 50 लाख इज अ ह्यूज मनी. इसमें आप यहाँ इंडिया में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस ही खोल लो. राइट. और अगर आप मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया वगैरह में आपका प्लेसमेंट हो गया, तब तो एक्सपेंसेस तो बहुत वही है सर. तो लोगों को वही लगता है कि वहां जाने के बाद लाइफ बहुत लाविश होती है. नहीं है, अगर थोड़ा आउटस्कर्ट में रहोगे या फिर वही सेम. हाँ, so okay, so one Yash has asked sir how to avoid distraction. Like अगर उसने गोल सेट किया है तो डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाना है? राइट गाइज, ये जो ऐसा चीज होती है दोस्तों कि आपका जो दिमाग होता है ना वो कभी भी गलत चीजों की तरफ ज्यादा जाता है. ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो एक्चुअली भगवत गीता से आता है, एंड इट इज लाइक यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यूअस फोर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट डिस्ट्रैक्शन. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेट्स से आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग जा रहा है फोन पे, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मुझे पता है. ठीक है, तो इस चीज में आपने करना क्या है, आप आपके ब्रेन को बताओ कि मैं फोन को हाथ नहीं लगाने वाला. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम करोगे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, आप जाओगे फोन पकड़ ही लोगे. दूसरे टाइम करोगे नहीं होगा, तीसरे टाइम करोगे नहीं होगा. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कंट्रोल हो जाएगा ऑन योर, जो भी बताऊं मैं, एक प्रैक्टिस होता है वो. ठीक है, प्रैक्टिस है. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने दिमाग को कंट्रोल, उतना वो ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है, अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन आप बोल रहे हो सोशल नेटवर्किंग के, तो बता दूं यार सोशल नेटवर्किंग कुछ काम की नहीं है. एक बार आप सिलेक्ट हो गए, आपके पास कुछ अचीवमेंट है, उसके बाद शो ऑफ करो, फिर आपको मजा आएगा. ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला. केतन, लाइक इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, आपने इतना सारा एग्जाम्स क्लियर किया है, आप मतलब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे क्या? यस सर, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज्यादा करता हूँ. जैसे मुझे सीखना, नई नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो रिसेंटली मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया था. उसके बाद मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. उसके बाद मुझे स्टॉक मार्केट बहुत पसंद है. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं. इट इज नॉट अबाउट स्टडी, मैं और भी चीजें बहुत करता हूँ. हाँ, सबको बेसिकली यही लगता है. तो रिसेंटली मैंने YouTube चैनल वगैरह भी स्टार्ट किया है, एंड इट हैज गॉट ऑलमोस्ट 17,000 सब्सक्राइबर नाउ. सो इट्स गोइंग गुड. Great. So next question, can I get into teaching after MTech? Of course you can. Yes, like, you can get. And guys, good thing is कि अगर आप IIT and ISC से MTech करते हो तो आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज होता है कि आप बेकरार होते हो कि कभी मैं किसी कॉलेज में जाऊं और स्टूडेंट को बांटूं. ठीक है, इसीलिए आप देखते हो IIT और ISC से जो भी बाहर निकलते हो जनरली टीचर बनते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज इतना आ जाता है. हाँ, सैलरी पे पैकेजेस के बारे में बताओ, प्रोफेसर्स के कितने होते हैं? मतलब जस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. लोगों को सर जनरली लगता है कि प्रोफेसर की सैलरी बहुत कम होती है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. मेरा दोस्त है, वो ही इज, उसका रैंक था शायद 1500 कुछ. ठीक है, उसने MTech वगैरह किया. उसके बाद उसका सर प्लेसमेंट हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विच इज इन पंजाब. ठीक है, लुधियाना के पास है. उसका पैकेज सर 12 लाख रुपीज है. ठीक है, तो उसके इन हैंड मैंने उसको पूछा आता है 70-75,000. तो लोगों को ऐसा होता है इन इंडिया टीचिंग जॉब जो है ना उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया. भाई अगर आप स्टिग्मा है, देखोगे तो टीचर इज वेरी रिस्पेक्टेड, बट वी डू नॉट रिस्पेक्ट. दैट इज अ प्रॉब्लम. Yes, it is a respectable job one, and most अगर आप मतलब आउट ऑफ पैशन उसको ले रहे हो टीचिंग जॉब को, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है. लाइक यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ एट होम, प्लस आप टाइम पे पढ़ा भी सकते. इट शुड नॉट बी फोर्सफुल टीचर. फोर्सफुल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा तो आप टीचिंग कर रहे हो, देन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको पसंद है तो यू विल ऑलवेज एंजॉय. राइट. So like Gaurav, we will take few more question. Gaurav ने पूछा है कि sir com science can give IAS exam? Of course. Like computer students IAS exam दे सकते हैं क्या?
यस, हाँ बट उसमें ऐसा होगा कि आपको किसी और ब्रांच से देना पड़ेगा। सिलेक्ट करना कंप्यूटर पड़ेगा, स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी से देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके क्लोज है सिलेबस से थोड़े। आप मैकेनिकल में अगर शिफ्ट कर जाओ तो आप कंप्लीट ही इसी चेंज हो का जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा मैच करता है ईसी, हाँ, ईसी का यस मैच यस करता है, तो आप वैसे दे सकते हाँ सूरज have asked if is there any negative marking for numerical question? No, there is no negative marking for numerical question. Then Pratik Bhujbal has asked our gate classes has how much importance? Like class join करना कितना important है वो पूछ रहा है। देखो ऐसा है, whenever you start studying something, there are chances that you may understand it in a proper in a improper way, ठीक है? तो गलत सीखने से अच्छा कहीं अगर आपको सही सिखाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से वही अच्छी चॉइस है। गुरु मतलब आप जैसे बात कर रहे हो तो आई थिंक यू नीड टीचर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ लाइक एग्जैक्टली। और दो तीन चीजें हैं कोचिंग कोचिंग क्यों करना चाहिए। फर्स्टली यू विल बी इन अ टाइट शेड्यूल, आप इंटेक रहोगे अपने शेड्यूल पे, आपको पता है कि मुझे हफ्ते में 4 दिन क्लास करना है। ऑफ कोर्स यू विल गेट टू मीट योर गुरु, आपके टीचर्स मिलेंगे ओके हु हैव एक्सपीरियंस हु हैव बीन देयर डन दैट, दे आर द राइट पर्सन टू गाइड यू। एंड यू थर्ड कैन पीयर आस्क ग्रुप। क्वेश्चंस व्हाइल प्रिपरेशन। हाँ हाँ, सबसे यू कैन इम्पोर्टेंट आस्क यही होता है क्वेश्चंस कि आपको, हाँ, आपको डाउट्स आते हैं किससे पूछे, तो आपके पास वो प्रोफेसर है जिसपे आपका 100% राइट है, या मैं पूछ सकता हूँ ये आंसर दे। Right, right. Ria is asking how much hours of study is required for TE students starting preparation. Now for me, generally my concept is of unlimited study. I don't think कि 5-6 घंटा अगर आप दे रहे हो तो मतलब सही प्रैक्टिस है, ठीक है? मेरे ख्याल से जितना टाइम आपको मिल रहा है उसको बेस्ट पॉसिबली यूटिलाइज करो अगर अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। Right. क्योंकि अगर आप ऐसा होता है 5-6 आवर्स का अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें लेट्स से 50% इफेक्टिव थे, तो आपका एक्चुअल स्टडी कितना हुआ? 2 घंटे का, 3 घंटे का। इससे अच्छा दिन भर बैठो, बोर हुआ तो निकल के चले जाओ, कुछ टाइम पास कर लो, वापस आ जाओ पढ़ने। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। Okay. Digvijay Singh has asked, should I study all engineering subjects to prepare for GATE, or there are some selected subjects which नो, I should देयर आर study for? सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी आपका ब्रांच है उसमें आप देखो उसका सिलेबस होगा, उस सिलेबस से आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वही आप। Okay. So next question is from Akshay. He has asked how many number of attempts you can give for GATE. So there are no limitation. देयर इज नो लिमिट। इवन जब मैंने गेट दिया था तो मेरे साइड में एक 50 इयर्स के अंकल भी बैठे थे। दे वांटेड टू डू पीएचडी, वो गेट दे रहे थे। Okay. तो कोई लिमिट। Okay. But try to crack in the first attempt itself. Why फर्स्ट to सेकंड look टाइम for? कोई इशू नहीं है। हाँ और उसके बाद how can you compare Technical University of Munich and IISc for MTech Mechanical? See, basically guys, IISc is a way lot of different यार। म्यूनिक इज गुड, ठीक है, उसका रैंकिंग 11th है, लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके लिए आईएससी जो है वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। IISc like one of the best institute in India. Even आप देखोगे APJ Abdul Kalam used to be guest lecturer there, so you can understand the level of teaching. मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो आईआईएससी में हैं, तो मैं उनसे मतलब जब भी फोन पे बात करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कैसी लाइफस्टाइल है, उनकी नॉलेज लेवल कैसी बढ़ रही है। Adesh has asked, does mock test really help for GATE preparation? Of course, It helps, like of course. of course. So then someone named BK, he has asked, please share your experience during preparation of EAC and GATE. So I think आपने already share किया है many experiences, but if you can share any story or something. I don't know. सर जनरली ऐसा था कि मेरा एक्चुअली सर फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई प्रॉपर इम्प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। तो मुझे पता चल गया था कि यार मैंने ही कुछ तो गड़बड़ की है, बाकी तो सब सही है, मैंने शेड्यूल फॉलो नहीं किया है, सब कुछ चीजें टाइम में नहीं की है। तो मुझे इंटरेस्ट था टीचिंग में बहुत ज्यादा, तो मैं सर टीचिंग भी करता था एंड शाम को आके अपना पढ़ता भी था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा दिन मेरा उसी में जाता था, टीचिंग करो और पढ़ो। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट पैकेज है, क्योंकि एक तरह से आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो वही अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये सबसे बेस्ट चीज है, एंड इसमें मुझे थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत हेल्प किया। ओके, उदित हैज आस्क्ड YouTube के वीडियोस पे कितने ट्रस्ट कर सकते हैं? देखो यार, YouTube के वीडियोस पे ट्रस्ट मत करो, YouTube का वीडियो जो बना रहा है उस पे ट्रस्ट करो। मेरे ख्याल से आप किसी को भी इसी बेसिस पे जज करो कि उस आदमी की अचीवमेंट क्या है,
ठीक है। देखो ऐसा यूट्यूब इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो भी उठाया वीडियो डाल देता है, ठीक है, बट अगर उसकी बंदे के कुछ अचीवमेंट्स है देन यू कैन ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। Okay. Vinay has asked कि is there a chance of delaying GATE exam due to COVID-19? ऐसा तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं नहीं, है। ऐसा तो So कुछ नहीं कुछ आता है होता तो तो हम आ लोग जाता अभी तक। डेफिनेटली सब, हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स को डेफिनेटली शेयर करेंगे, विल गेट टू नो एंड बिफोर हैंड। नोटिफिकेशन भी आएगा सो तो उसमें क्लियर हो ईश्वरी क्लियर हो जाएगा, यस। ईश्वरी मोडक, आई एम इन फाइनल ईयर राइट नाउ, आई एम टू गिव GATE 21, विल आई बी एबल टू क्रैक, इज दिस टाइम एनफ? So again same question, 6 months. आंसर इज यस, आंसर इज Yeah. सेम। टाइम कभी है, आज से ही बेस्ट है कि आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। Yeah. So you can think in that way, 6 months is equal to 180 days roughly. Okay. Yeah. And if you have to prepare 10 subjects, तो एक subject के लिए आपके पास फिर भी 18 days है. So you And see वो भी 18 बहुत days, सारा टाइम है सर। बहुत सारा अगले टाइम 6 है। मंथ्स कोई क्लासेस वगैरह किसी के होने नहीं कुछ वाले, नहीं होने वाला है, ना आपका कहीं कॉलेज जाना नहीं होने है वाला है। आपको, पढ़ो बहुत अच्छे से। हाँ, safe रहो। एक सब्जेक्ट में 18 डेज, आप 15 डेज प्रिपेयर करके 3 दिन आप मॉक टेस्ट भी लोगे तो बहुत हो गया। फिर देवेंद्र, इज इट बेटर टू स्टडी इंडिपेंडेंटली फॉर गेट और जॉइन अ कोचिंग क्लास टू क्रैक गेट एग्जाम? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दिस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। सिद्धेश देसाई, अच्छा, एक मैकेनिकल बुक्स के लिए स्टूडेंट ने पूछा है, व्हिच बुक शुड आई रेफर? ओके, भूषण नाम है। फर्स्ट थिंग इफ यू आर जॉइनिंग एनी कोचिंग तो आपको कोई जरूरत नहीं है बुक्स पढ़ने की, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड अगेन गाइस, बुक्स पढ़ने का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, देयर आर चांसेस कि आप उसको गलत तरीके में अंडरस्टैंड कर जाओ, ठीक है, और उसको एक तरह से अनलर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो लिस्ट है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा। Siddhi Desai, if my college percentage is less but I scored good in GATE exam, will I still get into IIT or NIT? Okay, there is a criteria, it's of 6.5 pointer, तो CGPA जो है आपका 6.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो अभी भी टाइम है, कर लो, बूस्ट हो जाएगा। Okay. Ashish wants to know what are the consequences of having BE in EC and MTech in CSE for after placement? मेरे को नहीं समझ में आया इसका। आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। Basically, I don't मेरे know. ख्याल से MTech in अच्छा, CSE की बात कर रहे हैं। oh, okay. Like he wants to change the branch. Yeah. I got. See, first of all, मेरे ख्याल से जो ब्रांच, आप ब्रांच कैसे सिलेक्ट करते हो, इट इज टोटली योर, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। लाइक फॉर मी, व्हाई आई डिड मैकेनिकल, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया था कि मैकेनिकल का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको ईसी के बाद सीएसई में अगर एमटेक करना है तो आप देखो कि जो भी आप एमटेक कर रहे हो उसमें जो भी टॉपिक्स है वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आईआईटी में एमटेक करना इजी नहीं होता, ठीक है। वो अपने कॉलेज जैसा नहीं है कि हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होती है, आपको मतलब बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एमटेक अच्छे से करने के लिए। ओके। It will have, so even if I qualify GATE exam with good marks in my college pointer, is it important for IITs? Again, the same question. Like 6.5 के अगर ऊपर है, it's good. Like you are in the same platform. किसी का 9 हाँ, pointer और अगर भी नहीं है है तो ट्राई करो कि आप आ जाओ। हाँ, so you both will be in the same platform. कोई 9 pointer वाला भी है, 6.5 भी है. Your selection will be based on GATE and the interview IIT का, है ना? So the next question is okay. So Rohit, no, he has not said that actually. Rohit, okay. So Rohit has asked, you are saying that degrees from abroad universities are not recognized in India. So on what basis are wall ranking given? So if I pursue MS from MIT or UCLA, ACLA, okay, it will have no value in India. ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ नहीं, होगा? ऐसा वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी करेक्ट वैल्यूएशन Value जो का- है ना वो वही है जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग, इफ आई एम लेट्स से मैं जर्मनी गया हूँ फॉर एमएस, तो आपकी करेक्ट वैल्यू जो है वो वही है उस कंट्री में, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो वहां से मैं यहाँ आऊँ तो आई गेस ये एफर्ट जस्टिफाइड नहीं। Right. Okay, so most of the questions are now almost same. Sir, the GATE rank for all, ये राहुल ने पूछा, राहुल यादव, the GATE rank for all branches is calculated all together? नहीं, it is branch specific. ब्रांच स्पेसिफिक अलग अलग होता है, हाँ। CS student will compete, CS students, वैसा है।
difference, can you tell me difference between MTech and MS? See, MTech is basically a course which is मैं बोल सकता हूँ कि it is, देखो MS में आपको रिसर्च ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है, whereas MTech is not a रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स, it's a application based कोर्स. अगर मैं लेट से बात कर दूं गाइस, अभी MTech इन रोबोटिक्स, ठीक है, जो IIT बॉम्बे ऑफर करता है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका जो वर्किंग है वो मोर ओवर ऑन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड ये सब है, ठीक है. अगर MS कोर्स की बात करता हूँ तो वहां पे आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो दोनों का जो सेंस है ना वो अलग अलग है. अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है देन डेफिनेटली गो फॉर MS. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, और आप जो कर रहे हो आपको मजा भी आएगा. वैसे MS प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया जाता है, फिर MTech अलग तरीके में डिजाइन करता है. एक वैभव ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर इंटरव्यू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है क्या? ओके, देखो ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मैंने बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है, इंटरव्यू के लिए इंग्लिश जरूरी है कि नहीं. देखो, अगर सामने से, सिंपल चीज बता रहा हूँ, सामने से अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है तो आप स्टार्ट इंग्लिश में करो. एट द पॉइंट यू कैन स्विच इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अब तक मतलब बहुत से इंटरव्यू दे दिए सर, ओके, मतलब सब कुछ ही हो गया ऑलमोस्ट, बट जनरली सामने से क्वेश्चन भी इंग्लिश प्लस हिंदी में ही आते हैं, ठीक है. ऑफ कोर्स कुछ PSUs है जो लोकल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू करती है. हाँ, लोकल लैंग्वेज में, या या सो मार्गो स्टेट वाइज, सपोज तमिलनाडु में हो रहा है, तमिल में इंटरव्यू करते हैं वो लोग. It's totally fine. Savita Kadam, she wants to know all PSUs are taking female candidates for after scoring gate, or there are some PSUs which are not taking नो नो female नो, ऐसा candidates. कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ होता. नहीं है, एवरीवन इज इक्वल, जेंडर बाउंडेशन नहीं है. नहीं, जेंडर बाउंडेशन नहीं है. एवरीवन इज इक्वल. Yeah, and okay, so how to check myself if I am going on the right track for preparing gate, or I am in not the right pace, or I think There is best way only to one do way. is There is only one way is to test yourself. Test टेस्ट. series. हाँ, टेस्ट सीरीज वही मैं बोलने वाला था, मॉक Yes, टेस्ट ले लो. yes, sir. उदित ने पूछा है ये. Sachin, I am a student of BE in mechanical in third year and I want to complete my masters. So which is good option? Currently, ये already design and address किया thermal है. is the Yeah. best thing. Okay, आप he is. मैकेनिकल से अगर हो तो डिजाइन एंड थर्मल में जाओ. डिजाइन अच्छा है, थर्मल उसके नीचे आ जाएगा. बट कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप IIT बॉम्बे से एरोस्पेस करते हो तो प्लीज डू नॉट गो, ठीक है, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है, ठीक है. प्रोडक्शन करते हो तो मत करो क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है फ्यूचर इन इंडिया, बाहर स्कोप है. Okay. KD has asked about GATE 21 preparation strategy. So I think we have already discussed. Still, you have 6 months to go, and you can. Strategy is only one. I have already हाँ. discussed. It's learn, understand, solve, then revise and test yourself. ये साइकिल है गाइस. साइकिल फॉलो करो, यही अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, बाकी कुछ नहीं. और मुझे लगता है शेड्यूल एकदम सबसे पहले शेड्यूल बना के स्टार्ट करना चाहिए. प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर. कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट. Planning बहुत important है. Yes. So Anushri has asked, please suggest some good book for ENTC. Actually, Ketan is from mechanical branch, so we will definitely. Okay, no issue. See what I will do. So sorry to interrupt. What I'll do, I'll just share. I have a link. मेरे जितने भी दोस्त हैं, और एक टॉपर्स का एक क्लब है हमारा, उसमें उन्होंने मतलब शेयर किए थे ये सब बुक्स. तो मेरे पास एक PDF है, वो PDF मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सभी बुक्स है, ठीक है. बट अगेन, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग with a coaching classes, please do not follow. It will be a wastage of time and you will have lot of confusion because every book is not great. Okay? Yes. Sanmukh has asked fees for GATE 2-year program. So it's almost around 35,000. So you can call us and to know more about it, more about the fees and what else you are getting. क्या आपको मिलेगा उस फीस में. So 2-year program का फीस भी सेम ही है. Like the 1 year's program. Sir, IISc is research oriented. Yes, IISc is research oriented institute, you can say. Bilal Ali Sheikh ने पूछा है, if I am not satisfied with my score in GATE 2021, can I attempt again in 2022? What is the procedure? Sure. Procedure कुछ नहीं है, फिर से फॉर्म फिल अप करो. हाँ, भर दो, एग्जाम दे दो, खत्म. हाँ, खत्म. For अच्छे computer मार्क्स आए तो engineering बहुत अच्छी है, कम मार्क्स आ गए तो पिछला जो स्कोर है उसी के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हो. Okay. So also, what about its fees? Is it expensive or in middle class budget? Fees for what? Like GATE exam का fees पूछ रहे हो? It is I think 1,500. 1,500 है. Again for reserve category student it is even lesser. But अगर आप coaching का fees पूछ रहे हो तो our coaching fees is I think almost 35,000.
आप मैं बार-बार बोल रहा हूँ, you can call us back and get to know more about it, to get to know There is more a about poster it. as And well, right? I Vedant, can but you yeah, can share that. poster, yeah, you can switch it. Yeah. So I'm currently in third year mechanical. I am aspiring for aerospace engineering. Can you suggest your views? So he wants to know if he have a prospect in aerospace engineering. See, the thing is, मैंने आपको पहले ही बता दिया, aerospace is a great branch, ठीक है, but in India we lag in that. अगर आपको aerospace में करियर करना है, मेरे ख्याल से आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को एम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इसका इतना ज्यादा स्कोप. Okay. So Prithviraj, how should I plan for GATE 2023 according to you? It's height like it's great that you have asked this question. So 23 के लिए भी आप लोग अभी से start कर सकते हो preparation करना. Am I audible? Yes sir. Okay. So फिर उसके बाद जयेश ने पूछा है सर प्लीज शेयर सम कट ऑफ. ओके, कट ऑफ फॉर ब्रांच स्पेसिफिक कट ऑफ वो पूछ रहे हैं. CSIT इसी के लिए CSIT इसी के लिए आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज 25 or 26 for general category students. For reserve category student it was even less. I think last year electrical का कट ऑफ बहुत हाई था because paper was easy, 39 था. मैकेनिकल का आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 32. इंस्ट्रूमेंटेशन का 36 के आसपास था. सिविल का भी 28-29 के आसपास था फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. ओके, चेतन ने पूछा है PSU प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके, देखो ये बहुत अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि PSU प्राइवेटाइजेशन ये रूमर्स आ रहे हैं, ठीक है, हो भी रहा है, बट द थिंग इज गाइस, योर जॉब लेवल, आपका जो जॉब लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर में है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर में है. जनरली प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसका आपके जॉब पे क्या इम्पैक्ट होगा ये किसी को क्लियर नहीं है, ठीक है. तो क्योंकि आपका जो जॉब है वो लेवल 10 पे है, ठीक है, इसीलिए आपके जॉब में इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे. Okay, so there are a lot of questions coming in. Digvijay ने पूछा है कि सर any kind of scholarship for GATE students, GATE qualified student, you'll get stipend, monthly stipend of 12,400 rupees if you opt for 2 years of MTech, और 3 years अगर आप research assistantship के लिए जाते हो उसके लिए stipend आपको ज्यादा भी रहेगा. So definitely, so your education will be free of cost अगर आप GATE के थ्रू जाते हो. Sir, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट एग्जाम आर एलिजिबल फॉर MBA? यस, 2 प्रोग्राम है ये, केतन ने ऑलरेडी बोला है. एक तो नीति है एंड प्लस द अदर वन इज FPM. यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर फेलोशिप प्रोग्राम ऑन मैनेजमेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. सो देयर आर 10 डिफरेंट एरियाज वेयर दे गिव फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. सविता कदम, ESE के सिलेबस में प्रीलिम में हाफ सब्जेक्ट्स एंड मेंस में हाफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. सब फुल होता है. हाँ, किसी ने पूछा था कि गेट प्रिपेयर करूंगा तो मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ क्या ESE का? नहीं कर सकते यार, मतलब कुछ 80% मुझे ऐसा है कि ESE में आपको और भी 12 अलग सब्जेक्ट करने हैं, 12 या फिर 14 अलग सब्जेक्ट करना है, तो 14 सब्जेक्ट्स दे काउंट, देखे, तो आप नहीं कर सकते. एंड सबसे ज्यादा कट ऑफ रेशियो सर मैं आपको बता दूं, ESE में ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं ना सर, वो होते हैं ऑलमोस्ट 5 to 7 लाख, ठीक है. उसके बाद एग्जाम जो देने आते हैं वो तो ऑलमोस्ट आधे होते हैं, 3 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं, और इन 3 लाख में से 6,000 या 5,000 जो है प्रीलिम्स क्लियर करते हैं. तो आप देखो यार वो सिलेक्शन रेशियो, कट ऑफ रेशियो क्या है. इसीलिए आपको डेडिकेटेड स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए, तो ही होगा. बट गुड थिंग इज अगर आप गेट में परफेक्ट हो, तो आपके लिए सिर्फ वो एक लेवल अप है. Yes. So students, thanks for attending. Like we are running out of time. Okay, so we'll have to stop here. जिनके भी questions unanswered रह गए, you please get back to us. We have already shared our numbers, which is 900-438-4232. आप लोग उस नंबर पे फोन कीजिए and we will try to solve all your questions which were unanswered. And thanks for joining. And Ketan, like we are very thankful that you have shown this, your intellect to all our students. I think सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है. इतने सारे questions आए हैं, and I hope like we all will get out of this pandemic situation. And I think we should take this crisis as an opportunity. अभी जो अपने पास टाइम है 6 महीना, आप सभी स्टूडेंट अभी घर पे रहने वाला, सो यही दिस इज द टाइम वेयर यू शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपेयर फॉर गेट.
Okay, so जिनको भी enquiry करना है batches के बारे में, classes के बारे में, we are starting our batch from 25th of July. Okay, so you please inquire, and we have some early bird concession as well for GATE 2022. If you enroll before 25th of July, the final fees is 31,500, and of course you can pay in installment. To know how the installments are, you have to call us. Okay, and for GATE 2021, the final fees is 20. Can you go to the next slide, Ketan? Yeah, so for GATE 2021, the final fees is 22,000. So, and which is also valid till 25th of July. So if you want to know more about this, you please get back to us, and you can pay these fees also in installment. And for GATE 2023 students, your fees will be 34,500 if you enroll before 25th of July. And the advantage for you students will be like you will complete your syllabus way ahead of your fellow competitors, and uske baad आप लोग पूरा एक साल रिवाइज करोगे हमारे साथ. Okay, so that's how we have planned for GATE 2023 batch. Okay, so जिनको भी जो भी questions है, जो भी queries है, get back to us. You can also visit our website, which is gate.vidyalanka.org. So thank you all. Thanks for joining in. Stay safe. Take care, all of you. All the best. Thank you, sir. Thank you, Ketan. Yes, thank you. Thank you It all. was a nice Stay session. It safe. was a great session. Yeah, thank you very much, Abhijit sir and Vidyalanka, for having me this session with our students. Yes. Yeah. Okay, bye. Take care, all of you.